Okay, so here starts our journey. Here's the journey starts. Here the journey begins. The journey that will lead you to the success of English essay. You know, I would like to tell you, okay, the person who topped in CSS 2019, how many marks did he secure in English essay? This is what we call luck. Or on the other hand, this is what we call the level of difficulty in English essay. He is the topper of English. He is the topper of CSS 2019, but he got 40 marks in essay. He got 40 marks in English composition. Now you can imagine how difficult the checking would have been, how difficult the consistency would have been that a topper is gaining 40 marks in essay. So now you can recognize the difficulty, the requirement, and all the things which are comprising of preparing an essay. And the one more thing, that the person who topped, the guy who topped this 2019, is not Pakistan educated. His academics have been in America, and his two or three, I hardly know, his two or three elder brothers are already bureaucrats. So having a foolproof understanding, having a proper background, having a foreign education, all these things made him stand on 40 marks. So right track is necessary, right pattern following is necessary. So today I'm going to give a general idea of what an essay is. You can take a thorough look. Okay, the essay. The word essay literally The word essay literally means textually. There is one thing which is called literal expression, the other is called alliteral expression, contextual expression. मैट्रिक में हम पढ़ते रहे हैं कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग और डिनोटेटिव मीनिंग. अब लिटरल मीन्स डिनोटेटिव मीनिंग, कॉन्टेक्सचुअल मीन्स कॉनोटेटिव मीनिंग. मिसाल के तौर पे मैं फिक्रा बोलता हूँ कि ही इज अ पुअर पर्सन, तो इसमें पुअर लफ्ज मैंने यूज किया. अब मैं ये भी बोलता हूँ कि माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर. अब दोनों में लफ्ज पुअर है, लेकिन मीनिंग दोनों में डिफरेंट है. एक में गरीब का मानी आ रहा है, एक में कमजोर का मानी आ रहा है. तो जो वो पुअर पर्सन वाला फिक्रा है, उसमें मैंने इसका लिटरल मानी यूज किया, लिटरल, जो कि कॉनोटेटिव मीनिंग है, सॉरी डिनोटेटिव मीनिंग है. और जो लफ्ज मैथमेटिक्स हुआ, उसमें मैंने इसका जो है वो कॉनोटेटिव अलिटरल कॉन्टेक्सचुअल मानी पेश किया. मिल्क इज रिच इन विटामिन्स, माय फादर इज अ रिच पर्सन. दोनों में रिच आया, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट से. इसी तरह हम थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर दैट वी विल डिस्कस. तो ऐसे है क्या, what actually an essay is? The word essay literally means grammatically, the literal meaning is the one which the dictionary gives you. A literal or contextual meaning is the one that you yourself derive with respect to connotations, with respect to requirement, minimal or maximum, meaning assimilation with the other. An attempt. The word essay literally means an attempt, and hence essay is the name given to the form of composition. एक पैकेज है. कॉम्पोजिशन मीन्स एक पैकेज है, एक आपके नॉलेज का टेस्ट है, आपकी ग्रामर का टेस्ट है, आपके राइटिंग स्टाइल का टेस्ट है, पैराग्राफ मेकिंग का टेस्ट है, आउटलाइन मेकिंग का टेस्ट है, फ्रेमवर्क मेकिंग का टेस्ट है, एडिफिस बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का, डिक्शन का, नॉलेज ऑफ कंटेंट है, जिसे आइडियाज कहते हैं, आपकी आर्गुमेंटेशन का टेस्ट है. कॉम्पोजिशन, form of composition. It is the test of a little bit of everything. English essay is the little bit test of everything, which is a short attempt. Short here means concise and very abridged with dense meaning. Jame. Short attempt here doesn't correspond to less usage of the word, but rather it corresponds to the appropriate
एंड डेंस एप्रोप्रिएशन ऑफ द वर्ड, कितना जामे है। ओके, तो क्या है, शॉर्ट अटेम्प्ट ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, जो आपको लिखने के लिए टॉपिक दिया गया। यूजुअली इट गिव्स डिटेल्स ऑफ नैरेटिव, description of some subject. Narrative means story making, सांचे में ढालना, जिसे मैंने कहा कि फ्रेमवर्क जैसे हम बिल्ड अप करते हैं, जैसे हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, पूरी बिगिनिंग, सेंटर, एंडिंग, स्टार्ट, मिडल एंड द एंड। जब हम ये तीन चीजें बनाते हैं तो हम नैरेटिव बिल्ड करते हैं, पूरा मुद्दा सामने रखते हैं, पूरी बात कन्वे करते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम सब्जेक्ट, ठीक है, वो नैरेटिव फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं उस टॉपिक को जो हमसे पूछा गया, एंड इंफॉर्मेशन ऑन सम सब्जेक्ट, और जो हमें इंफॉर्मेशन है उस सब्जेक्ट पे, उस पे हम बात करते हैं। तो दिस इज जनरली, this is only generally the the definition, a rough definition of what an essay is, what an essay should be, what an essay is all about. Coming next are some of the things which are necessarily to be kept in mind. ऐसे में क्या होना चाहिए, जो आपको इतना मुअम्मा खड़ा कर लिया, लेकिन देखिए, there will be millions and millions of people who will be having a very thorough understanding, a very profuse expression of English, लेकिन जब लिखने का बात आती है तो इंग्लिश ऐसे इज अ वेरी सिस्टमैटिक थिंग। इसमें ये कुछ चीजें आपको कोर अप करनी होती हैं। कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब बिल्कुल आउटलाइन नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि यहाँ पे इंग्लिश ऐसे में क्या क्या चीजें आपको लाजमो मलजूम है पुट करने के लिए, वेदर यू आर राइटिंग द आउटलाइन or you are making the framework of the whole of the verbs, of the whole of the verbal expression, पूरे का पूरा ऐसा इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक, जिसमें बॉडी पैराग्राफ, जिसमें आउटलाइन, जिसमें फ्रेमवर्क, आपकी थीसिस स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, और फिर टॉपिक सेंटेंस मेकिंग ऑफ एवरी पैराग्राफ, हर पैराग्राफ। ये कुछ बातें हैं जो हम कवर करेंगे। कॉन्टेंट्स में मैंने लिखा बैकग्राउंड इन्फो। Background info here corresponds to the information, in-depth analysis of the topic of the essay that you are going to attempt. Background info means a foolproof epistemology, a whole understanding building of the topic of the essay. As I told in the earlier demonstration lessons, that essay is all about making proper understanding of what is given and what is required in the sentence of the topic. The topic of the essay, what is written and what is required. On the basis of these two things, you will have to make a background info in your mind here. In your mind here. Okay, what are the parts of paragraph? For sure, the passing percentage, which is outweighing the other formats and templates of writing an essay in last 3 years, is the thesis statement template and format. आजकल जो अब ये जो लड़का जिसने ऐसे टॉप किया है, CSS ऐसे टॉप किया है, उसने भी थीसिस स्टेटमेंट वाला ऐसे लिखा था। So how to make background info? After that, on the basis of that background info, how to start parts of the paragraph. Parts of the paragraph here means कि आपने आउटलाइनिंग कैसे करनी है, आपने थीसिस स्टेटमेंट मेकिंग कैसे करनी है, आपने इंट्रोडक्शन कितना कैसे बिल्ड करना है, कंक्लूजन कितना कैसे किन आइडियाज पर मुश्तमिल बिल्ड करना है, बॉडी पैराग्राफ कैसे बिल्ड करने हैं, हर बॉडी पैराग्राफ का स्टार्टिंग सेंटेंस कितने वर्ड्स का होना चाहिए, हर बॉडी पैराग्राफ का एंडिंग सेंटेंस कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितनी परसेंटेज एक पूरे ऐसे में पैसिव वॉइस की होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज एक ऐसे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज इसमें हैवी वोकेबुलरी की होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज इसमें आउटलाइन की होनी चाहिए। ये सारी है फ्रेमवर्क में चीजें।
उसके बाद है द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग कम्स स्ट्रेट वे टू द स्ट्रक्चर. How beautiful your structure is, how beautiful strong grammar your is, how beautiful choice of the wording is there, how beautiful idiomatic expression you have used, how beautiful prosaic expression you have used, how beautiful syntax level is there, how many complex sentences you use, how many compound sentences you use, how many simple sentences you use in introduction, in the start of body paragraph, in the end of the conclusion, from beginning till the end. So mechanics of writing includes the whole of understanding of your writing stuff. जैसे कि मकान बनाया जाता है तो उसमें ईंटें कैसी होगी, कितना प्लस्तर लगेगा, कितने कितने का मसाला बनेगा, कितना आयरन गर्डर्स यूज होंगे, ये मैकेनिक्स हैं. सारा स्ट्रक्चर मेकिंग, उनमें क्या रखेंगे मकान में आप, अब उसमें आइडियाज कैसे डालेंगे, कंटेंट्स कैसे डालेंगे, ठीक है. तो ये चीजें हैं. आगे चौथे नंबर पे मैंने व्हाट इज एन ऐसे इसलिए लिखा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, और फिर आपको पता चलना चाहिए कि मुझे इस ऐसे में चाहिए क्या. अब ये भी डिपेंड करता है कि कितने किस्म के पैराग्राफ्स हैं, कितने किस्म के टॉपिक्स हैं वो आगे आ रहे हैं. पर्पस एंड टाइप्स ऑफ ऐसे ये भी हम डिस्कस करते हैं. पार्ट्स ऑफ द ऐसे के, ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं. थीसिस स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कवर हो जाए तो डिपेंड करता है कि आप CSS ऐसे पास करेंगे या नहीं. इसकी कवरेज पे आपका डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन. फिर उस थीसिस स्टेटमेंट को प्रोसेस कैसे करना है. और जब आप ऐसे लिख चुके तो उसमें आपने 5 से 10 मिनट अपना जो रनर अप टाइम रखना है, जिसमें आपने असेस करना है यूजिंग APA स्टाइल. अगर आपको बिब्लियोग्राफी देनी है, अगर आपको रेफरेंसेस कोट करने हैं, तो फिर आपने किस तरह ये बिब्लियोग्राफी जो है वो शो अप करनी है. आगे है सेंटेंस क्या होता है, ये हम आपके साथ जिक्र करेंगे. सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. In simple terms, a sentence is a set of words that contain a subject and a predicate. Subject means, मिसाल के तौर पर वो खाना खाता है, he eats the food. He जो है subject है, eats and food, verb plus object predicate. ये आपको तब जरूरत पेश आएगी जब आप फिक्रा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें आप एक से ज्यादा क्लॉजेस और प्रेडिकेट्स यूज करेंगे. इसलिए आपके लिए ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है. सब्जेक्ट क्या होता है, इट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस. ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये भी करेंगे कवर. व्हाट इज द प्रेडिकेट, इट इज व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, के ये पूरा ऐसे कहा किस चीज के बारे में जा रहा है. उसके बाद यार आ रही है एक चीज, बैकग्राउंड इन्फो. व्हाट इज अ पैराग्राफ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेस. कनेक्टेड, दिस इज व्हाट वी कॉल कोहेरेंस, this is what we call sequence, this is what we call sequential flow, proficiency and profuseness. How beautifully you spill your ideas. आप गुफ्तगू करते हुए किसी को कितने ब्यूटीफुली कन्विंस करते हैं. अब आपने ऐसे में बंदे को बोल के नहीं, बस लिख के कन्विंस करना है. दिस इज द mere difference. Which is the most important sentence in the paragraph? Topic sentence. आपके ऐसे के हर पैराग्राफ का की सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस है, जो कि इंट्रोडक्शन, हर पैराग्राफ की पहली लाइन और हर पैराग्राफ की आखिरी लाइन, ये चीजें डिटरमिन करेंगी. उसके बाद है बैकग्राउंड इन्फो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है. तो उसके बाद हम चल रहे हैं, ये देखें, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे के टॉपिक्स कितने किस्म के हो सकते हैं. आपको शाहीन की तरह आपने पलटना झपटना है अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक. कभी हो सकता है आपको थोड़ा सा पोजेसिव होना पड़े, थोड़ा पैशनेट होना पड़े, एंथ्रॉल्ड होना पड़े, एक्यूबिलेंट होना पड़े, कहीं डिफेंसिव होना पड़े, कहीं एनालिटिकल होना पड़े, कहीं कंपैरेटिव होना पड़े. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक. नैरेटिव टॉपिक है जिसमें आपने पूरी कहानी बिल्ड करनी है. फॉर एग्जांपल वो पूछता है आपसे कि आप अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका कश्मीर के ऊपर रोल के ऊपर क्या समझते हैं.
तो आपने एक बैकग्राउंड बिल्ड करना है, आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सब्सटेंशिएट करने के लिए, स्क्रूटनाइज करने के लिए, सर्टिट्यूड के लिए, उसके अप्रूव के लिए। डिस्क्रिप्टिव टॉपिक क्या हुआ करते हैं जिसमें सिर्फ नॉलेज मांगा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि इस्लाम सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द विमेन मोर देन एनी अदर रिलीजन, एक्सप्लेन। इस्लाम औरतों के हकूक की सबसे ज्यादा जो है वो अक्कासी करता है। अब इसमें आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस नहीं करने, आपने नॉलेज में रह के अपना डिस्क्राइब कर देना। एक्सपोजिटरी, expository means which is related to the public issues, which is related to the issues in the society। expository जिसमें आपको कहा जाता है एनआरजी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये नैरेटिव भी इसमें बिल्ड करना है और एक्सपोजिटरी भी रहना है, ठीक है। और एक्सपोजिटरी ये आपको इन डिटेल बताया जाएगा कि हाउ वी विल स्टार्ट कवरिंग द टॉपिक्स ऑफ एवरी एसे फॉर लास्ट 10 years। हम पिछले 10 साल पेपर्स के ऐसे के हर टॉपिक को, जो कि करीब 100 से ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे, उनमें आपको बताएंगे कि ये नैरेटिव टॉपिक है, ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, ये एक्सपोजिटिव टॉपिक है, ये रिफ्लेक्सिव टॉपिक है, ये इमेजिनरी टॉपिक है, इमेजिनेटिव टॉपिक है, इसमें आपने अपने घोड़े किस तरह दौड़ाने हैं। और हम यहाँ पे आपको टाइप करके बताएंगे कि आपने किस तरह अपना जो है वो राइटिंग स्टाइल मेंटेन करना है। तो ये है जनरल इंफॉर्मेशन कि हम किस तरह जो है टॉपिक सेंटेंस की मुताबिक अपने आप को पल्सेट करेंगे, हम झपटे पलटेंगे कैसे उस टॉपिक को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए। उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। What should the structure of an essay be like? तो लिखा है every essay has a beginning, a middle and an end। ये पहली लाइन का मानी जो समझ जाए वो सही इंट्रोडक्शन बना लेगा, वो सही बॉडी पैराग्राफ बना लेगा और वो सही कंक्लूजन बना लेगा। जब ये तीन चीजें उसने सही बना ली, इट इज श्योर कि उसने ऐसे को समझ के अटेम्प्ट कर लिया। बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, इसको अरिस्टोटल अपनी ट्रेजेडी में कहता है मैग्नीट्यूड। जिस ऐसे में मैग्नीट्यूड, अपनी पोएटिक्स में वो कहता है कि राइटिंग में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ड्रामाज में मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अ प्रॉपर बिगिनिंग, वही नैरेटिव, कहानी बिल्डिंग। मिडल, कौन सी बात दरमियान में की जाए। एंड एंड, जो बंदा फसाहत व बलागत गुफ्तगू में रखता है, इट मीन्स कि वो फसाहत व बलागत अगर सेम रेटरिक यूज कर सकता है, अगर वो सेम कन्विंसिंग एनालिटिकल पावर यूज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड ऑफ एन एसे, तो मीन्स कि ही इज ऑन द सेफर एंड। इन अ 5 पैराग्राफ एसे, अब ये 5 पैराग्राफ एक टिपिकल स्टाइल है, ये आप 5 की जगह आप 10 भी कर सकते हैं, आप 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन राइटिंग स्टाइल। मैं जरा पैराग्राफ बड़े लिखने का आदी हूँ, इसलिए मैंने 5 लिखा है। तो मैं इन अ 5 पैराग्राफ एसे, द फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, और ये सबसे बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए आपके एसे का। Introduction is the most lengthy paragraph of your essay because you need to narrow down the explanation of your outline in it। आपने अपना नथार के पेश कर देना है कि आउटलाइन में हमने क्या क्या बयान किया, वो इंट्रोडक्शन में हम वर्बल प्रोजाइक फॉर्म में बता रहे हैं। नेक्स्ट 3 पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एसे, 3 की बजाय 4 कर लें, 5, 6, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर आउटलाइन। आपने जितनी आउटलाइन लेंथी बनाई उतने बॉडी पैराग्राफ लेंथी होते चले जाएंगे। द फिफ्थ एंड फाइनल पैराग्राफ इज कंक्लूजन, आखिरी पैराग्राफ ये भी करीबन जो है वो इंट्रोडक्शन के स्ट्रेंथ जितना ही होना चाहिए। दिस स्ट्रक्चर इज रिटन इन स्टोन, होएवर दिस स्ट्रक्चर इज रिटन इन स्टोन। ये जो है स्टोन का मतलब क्या है कि आपने एक प्रॉपर जो है वो सिल क्रिएट करनी है, एक प्रॉपर स्टेयर केस बनाना है, एक प्रॉपर सीढ़ी बनानी है। Look at a newspaper or magazine, you'll rarely see an essay that follows this exact formula.
On the other hand, it's a good place for beginners to start. When you feel more confident, you can get more creative and break free to the 5 paragraph formula. जब वो कहता है कि मैं ये यहाँ पे आपको बताने का ये चीज़ है, मकसद ये है कि दिस इज द बिगिनिंग ड्रिल, दिस इज द बिगिनिंग मॉक। पहले हमारे लेसन्स तो सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के होंगे, फिर जब हम नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, आप खुद लिख के हमें चेक करवाया करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अब आपको अपने आइडिया को किस तरह एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो जी बेटे, पर्पस क्या है? देखिए, वाई आई एम राइटिंग दिस ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे की टॉपिक को डिपेंड करना है, ऐसे के टॉपिक को नैरो डाउन करना है, ऐसे के जो टॉपिक को आपने जो वो डी सिलेबलाइज करना है, आपने उसे डी फॉर्मुलेट करना है, उसे डी सर्टन करना है, उसे डी डी वेल करना है, आपने VEIL डी वेल करना है, उसके ऊपर से नकाब उतारना है। तो फिर वो डिपेंड करता है कि आपने वो टॉपिक सेंटेंस समझने के बाद क्या वो नैरेटिव्स ऐसे है, एक्सपोजिटरी है, लिटरेरी है, इमेजिनेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, ऑर्गुमेंटेटिव है, ये कुछ बातें हैं जो आपको कवर अप करनी होंगी। हम जब अपने ये मैं आज आपको एक आउटलाइन फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि हम अपने ऐसे के क्लासेस किस तरह कैरी ऑन करेंगे, किस किस तरह लेके चलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि जब हम अपना ग्रामर, अपनी ग्रामर और आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद हम जो वो अलग अलग चीज़ों का फ्रेमवर्क बनाना शुरू करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बॉडी ऑफ द ऐसे, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बॉडी में होता क्या है कि आपको जब आप सिस्टम मिल गया, एक कोहेरेंस और कोहिजन का और सीक्वेंस का सिस्टम मिल गया, कि सिंपली आपको करना ये है कि आपको ऐसे का टॉपिक समझना है, उसके अप्रोप्रिएट बेस्ट थीसिस स्टेटमेंट बनानी है, और उस थीसिस स्टेटमेंट की बेसिस पे आपने अपने बुलेट पॉइंट्स, जिसको आप आउटलाइन कहेंगे, वो आउटलाइन आपको बिल्डअप करनी है। आउटलाइन जब आप बिल्डअप कर चुके होंगे, तो फिर आपने उन आउटलाइन को एक एक करके बॉडी पैराग्राफ में या दो दो करके एक एक बॉडी पैराग्राफ में स्मॉल बॉडी पैराग्राफ के रूप में आपने एक्सप्लेन करते जाना है। ठीक है, आपने जो आउटलाइन बनाई, सब आउटलाइन बनाई, केस इन पॉइंट बनाया, रेफरेंसेस केस इन पॉइंट बनाया, कोटेशन ओरिएंटेड केस इन पॉइंट बनाया, जो भी आपने बनाया, आपने उसको जो है वो बॉडी पैराग्राफ में एक एक करके या दो दो करके एक पैराग्राफ में आपने अपनी आउटलाइन को एक्सप्लेनेशन में लाते जाना है। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें हैं। ठीक है, ये कोहेरेंस का मैं इतना जो राग लाता हूँ, ये है क्या, कोहेरेंस कहते किसको है? ठीक है, पूरे ऐसे में अगर आपके कोहेरेंस नहीं है, सिस्टम नहीं है, फ्लो नहीं है, तो फिर आप मतलब चीज़ों को फ्रेमवर्क में, सीक्वेंस में नहीं ला पा रहे। अगर आप ला नहीं पा रहे तो इट मीन्स कि आपके अंदर कमांड नहीं है, आपके अंदर डेक्सटेरिटी नहीं है, आपके अंदर एड्रॉइटनेस नहीं है, आपके अंदर इतनी अडेप्टनेस नहीं है, आपके अंदर इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। हाउ टू हैंडल योर आइडिया, हाउ टू प्लेस योर कंटेंट आइडिया, हाउ टू यूज वेरियस थिंग्स डिपेंडिंग ऑन दिस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत नेसेसरीली जहन में रखनी है। रेलिवेंट क्रिटिसिज्म एंड काउंटर क्रिटिसिज्म, ये बहुत क्रूशल चीज़ है। आपको जजमेंटल भी नहीं होना, आपको स्वीपिंग स्टेटमेंट भी नहीं लाने, आपने पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ का नाम भी कंटेम्प्रेरी जो अलाइव हैं कोशिश करें उनका नहीं यूज़ करें, रिलीजियस पर्सनैलिटी का नहीं यूज़ करें। ठीक है, जो वर्ल्ड रिनाउंड, वर्ल्ड ओन्ड, वर्ल्ड सेकेंडरी थिंग है, उसको आप यूज़ करें। कंक्लूजन शुड नेवर इंट्रोड्यूस एनी न्यू मटेरियल, ये बात जो है कह लें कि जिस्ट है, मक्खन है, मक्खन। अब इसमें क्या कह रहा है वो कि कंक्लूजन, अब हमें क्या होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा साइंटिफिकली सोच पे नहीं उभार पाते। कैसे कि आपने 10 आउटलाइन बनाए, उन 10 आउटलाइन को आपने पूरे इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में हाईलाइट कर दिया, एक इमेज दे दिया, एक मिरर दे दिया कि भाई इस सेंटेंस के बारे में, इस ऐसे के बारे में मेरा ये व्यू है।
उसके बाद आपने हर बॉडी पैराग्राफ में अपनी आउटलाइन को बता दिया। अब कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, हम ओवरलैप कर जाते हैं, या तो कुछ आइडियाज जो हमने इंट्रोडक्शन में दिए हैं वो मिस कर जाते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर जाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका कंक्लूजन इज रीफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग, ठीक है, डाइवर्स फॉर्म ऑफ योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो सब्सटेंशियल वे में होगा, इंट्रोडक्शन जो है वो इलेबोरेटिव वे में होगा। इंट्रोडक्शन में आप चीजें इलेबोरेट कर रहे हैं, कंक्लूजन में आप सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, आपकी टोन सब्सटेंशिएटिव है कंक्लूजन में। उसके बाद पैराग्राफ शुड बी सेल्फ कंटेन्ड। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है सेल्फ कंटेन्ड पैराग्राफ है जो अपने आप में फुलेस्ट है। पूरे ऐसे में से एक पैरा अलग कर लें तो वो पैराग्राफ अपने आप में पूरी सेंस रखता हो, अपने आप में फुलेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन हो, अपने आप में फुलेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें कोई आइडिया या बात फुली कन्वे कर दी गई हो। इसीलिए डिपेंड करता है कि आप पैराग्राफ बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है पैराग्राफ को सेल्फ कंटेन्ड बनाना। ईच पैराग्राफ शुड हैव लिंक विद रेफरेंस ऑफ द टॉपिक। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात किस तरह इंपॉर्टेंट है कि हर पैराग्राफ जैसे कि किसी न किसी आउटलाइन के बुलेट पॉइंट को, सब आउटलाइन को, किसी केसिंग पॉइंट को रेफर कर रहा है, तो अगला सिस्टमैटिक फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ में आप पहली आउटलाइन को जिक्र कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में आप चौथी आउटलाइन के ऊपर आ गए हैं, तीसरे में आप दूसरी पे, चौथे में आप छठी पे। ये कोहेरेंस नहीं है। आपको स्ट्रीम लाइन करनी होगी चीजें, आपको नैरो डाउन करनी होगी चीजें, अम्ब्रेला फॉर्म। ऐसे स्टूडेंट गिव एग्जामिनर इंडिजेस्शन। इंडिजेस्शन का मतलब मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि हमारे यहाँ जैसे कि लैंग्वेज यूज का कॉन्सेप्ट होता है कि हम भरमार कर देते हैं डिफिकल्ट वर्डिंग की, भरमार कर देते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को ढूंढ ढूंढ के। कई स्टूडेंट्स में एस्पायरेंट में तो इतना मैंने क्रेज देखा है कि वो डॉन अखबार में से चुन चुन के लफ्ज देख रहे होते हैं, ये ढूंढ रहे होते हैं, फ्रेजल वर्ब ढूंढ रहे होते हैं, जस्ट टू मेक देयर राइटिंग फ्लावरी। तो ये बात बड़ी सेंसिटिविटी ओरिएंटेड है, एस्थेटिक सेंस में यूज करना है। आपने अपनी लाइन को ब्यूटीफाई करना है, ना कि जो स्पाइस है, जो चिली है, जो स्पाइस है, वो ब्यूटी टेस्ट को बढ़ाना है, उसके पॉइजनस नहीं करना। तो इस लिहाज से ऐसे शुड नॉट गिव एग्जामिनर इंडिजेस्शन। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे आज इंट्रोडक्शन के तौर पर शेयर करनी थी कि ऐसे कैसा होना चाहिए, ऐसे हुआ क्या करता है। तो अभी ये मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ये ज्वाइन कीजिए। इसमें हम इंटरेक्शन करते हैं, इसमें हम गुफ्तो शरास करते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम। सर आपका ये जो सेशन है ये एक्सटेंड हो गया है 40 मिनट से, पहला सेशन था इस वजह से, तो आप इसी सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसमें टाइम लिमिट नहीं है कोई। ओके, मींस कि आई कैन कैरी ऑन। यस ओके बेटे, इफ any student is having any question he can ask. जी खुबैब, can you listen to me? यस सर, शकील अहमद और डॉक्टर इसरा ने जो है सर हैंड रेस किया हुआ है, आप उनसे पूछो। जी डॉक्टर शकील अहमद, what can I do? ना माइक अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हैं। एक भी क्लास में नहीं रजिस्टर करा था, निमरा के रहता है 0335। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे, डॉक्टर इसरा जी। सर आई वुड लाइक टू से दैट कि जो बॉडी पैराग्राफ आपने बताया उसकी कितनी लेंथ या टोटल वर्ड्स होने चाहिए,
जैसे आपने बताया कि एक कंक्लूजन है और एक इंट्रोडक्शन है, तो जो बॉडी पैराग्राफ है उसकी हमारी कितनी लेंथ होनी चाहिए कि वो प्रिसाइज भी लगे और फिर वो टू द पॉइंट भी हो? देखिए बेटे, इसको बात जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एसे इज वेरी क्रूशियल. वी कांट अफोर्ड हैविंग एनी काइंड ऑफ लूप होल इन इट, वी कांट अफोर्ड हैविंग ए ड्रॉबैक इन इट. ठीक है, तो उसमें आपने जो बॉडी पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल आपने आउटलाइन बनाई है नंबर 3. आउटलाइन नंबर 3 को आपने बॉडी पैराग्राफ में ढाल के एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपकी आउटलाइन ही असल में आपके बॉडी पैराग्राफ है एक्सप्लेन्ड फॉर्म में, एक्सप्लेन्ड फॉर्म में. तो आपको जो रिकग्नाइज्ड वे है वो कहते हैं इफ यू आर गोइंग टू राइट 5 to 6 वर्ड्स इन अ लाइन, देन 6, 7 or 8 lines are enough to cover a body paragraph. If you are going to write 5 or 6 words in a line, then 7, 6 or 8 lines in between is okay. उसमें क्या होगा कि पहली लाइन जो होगी वो टॉपिक सेंटेंस होगी, वो उस आउटलाइन की रिफ्रेजिंग या पैराफ्रेजिंग होगी जो आउटलाइन आप बॉडी पैराग्राफ के रूप में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, या केस इन पॉइंट या रेफरेंस या बुक या इवेंट या इंसिडेंट या कोई भी चीज़ आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. आप पहली लाइन पैराग्राफ की उस की स्टेटमेंट की वर्ड से, की लाइन से शुरू करेंगे, और आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट कैन रीच अप टू 6, 7 or 8 लाइंस इफ यू आर राइटिंग 5 or 6 वर्ड्स इन अ लाइन. सही है सर, थैंक यू सो मच. जी, any other, if any other guy wants to ask anything? ये डॉक्टर शकील साहब पूछ रहे हैं कि आइडियाज़ कैसे जनरेट किया जाए. तो मैं बताना चाहूँगा कि CSS एसए का जो है या PMS एसए में आइडियाज़ को आपको जनरेट तब कर पाएंगे जब आपके लिए पूरा पीछे आपके बैकग्राउंड होगा, आपकी एक थॉरो लर्निंग होगी, आपकी एक थॉरो रिसर्च होगी, आपकी एक थॉरो जो है वो ग्रास्पिंग ऑफ नॉलेज होगी. फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऐसा टॉपिक तो नहीं हो सकता ना कि आपने प्रिपेयर ही ना किया हो. जब आपको मिसाल के तौर पर वो पूछता है कि द रोल ऑफ यूएन विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर इश्यू, तो उसमें इट मीन्स कि आप CSS एस्पायरेंट हैं, आपने करंट अफेयर भी तैयार किए हैं, तो आपने ये टॉपिक लाजमी तौर पे किसी ना किसी वे में, इन सम वे और द अदर, मॉक प्रैक्टिस में, मॉक एग्जाम में जो कवर करके रखा होगा. तो फिर आपने वो जो पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, राइट एंड चेक, लिखें और चेक करवाएं, लिखें और चेक करवाएं, लिखें और चेक करवाएं, ये प्रैक्टिस जो आप कर चुके होंगे, उस प्रैक्टिस की बेसिस पे आपके जहन में सम व्हाट आइडियाज क्लैरिफाई स्ट्रीमलाइंड वे में होंगे. आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडियाज ऑलरेडी होंगे उस बैकएंड पे जो आपने स्टडी बैकएंड पे कर रखी है, जो प्रैक्टिसेस बैकएंड पे कर रखी हैं, उनको रिलेट करके. तो उन बैकएंड इश्यूज को, उन बैकएंड टॉपिक्स को एक एक करके आप लेके चलेंगे और उनको आप कंटेंट में बनाते चले जाएंगे और आप आइडियाज ऐसे जनरेट करेंगे. इसमें आपकी लर्निंग और फ्री फॉर्म ऑफ राइटिंग दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. अगर आपकी लर्निंग वीक है, ग्रामर, राइटिंग प्रोफिशिएंसी जितनी भी अच्छी, जब आइडियाज कंटेंट्स लैक कर जाएंगे तो आपकी इंग्लिश के ऊपर अबूर कुछ नहीं कर सकेगा. अगर बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ आइडियाज, कंटेंट्स और नॉलेज है लेकिन इंग्लिश एक्सप्रेशन फ्लॉड है, तब वो आइडियाज फ्लॉड हो जाएंगे, ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे. तो दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर लेके चलना पड़ेगा. जी, कोई और कुछ और पूछना चाहें? अस्सलाम वालेकुम सर. जी बेटे, वालेकुम अस्सलाम. गैलेक्सी J7 Prime. सर आई एम अहमद खटक और सर मैं 2018 PMS में अपियर हुआ था, लेकिन अनलकीली मैंने सिर्फ 7 पेपर्स अटेम्प्ट किए और उनमें से 5 जो कंपल्सरी थे सबके सब पास थे और बाकी 2 कंपल्सरी ऑप्शनल जो थे वो फेल थे. और इससे में सर आई गॉट 65 मार्क्स.
माशाल्लाह एंड इन माशाल्लाह प्री-सी very आई गॉट 52। और मेरे जो बैकग्राउंड है वो एमफिल इंग्लिश लिटरेचर है। तो सर very पूछना ये था कि शुड आई कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रेटजी एज आई डिड इन पीएमएस और आई शुड चेंज इट अ बिट। तो सर ये क्वेश्चन है। बेटे ये देखिए मेरी बात सुने। सीएसएस जो है ना बड़ा कातिल आजम है, पीएमएस और सीएसएस। मेरे एक भाई कजन है, दोस्त जकी नकवी भाई जो है, उन्होंने 17 में भी पास किया, 18 में भी पास किया, ठीक है, रिटर्न सही सीएसएस सर। से। लेकिन 2019 में फिर उनकी पसंद की एलोकेशन नहीं चाहते, वो चाह रहे थे मतलब मैं ये पीएएस में आऊँ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, वो उनका इशू आ रहा था। अब देखें, वो बंदा हु हैज क्वालिफाइड ट्वाइस इज नॉट एबल टू क्वालिफाई थ्राइस, वो तीसरी दफा नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो बात ये है कि सोल्जर के हाथ में स्वॉर्ड का यूज करने का स्किल होना चाहिए, मैदान चाहे जो भी हो जाए। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जो आप इंग्लिश एसे में या इंग्लिश कॉम्पोजिशन में किसी भी में आपको पता है कि ये चीज़ें डूज एंड डोंट्स हैं और ये मैंने पूरी की थी तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, ये मैं अगली दफ़ा पूरी करूँगा तो उतने अच्छे और आ जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी जब आप मिसाल के तौर पे इंग्रेडिएंट्स पूरे रखेंगे ना अपने, तो फिर अल्लाह ताला पे सही छोड़ सर। दो। इंग्रेडिएंट्स आपके, अगर आपको लगता है कि यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक, देन यू शुड गो ऑन। हाँ, इंग्रेडिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे कि मैंने आपको डिटेल पिछला लेक्चर दिया, जिनमें जो जो चीज़ें मैंने आपको सही बताई, सर, बिल्कुल सर। वो जब आपके पास हथियार पूरे हैं तो जंग मैदान कोई भी हो आप लड़ लेंगे। सही। और सर एक बात ये कि जब मैंने वो अटेम्प्ट किया था वो दैट वाज विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन। और जब मैं ऐसे मैंने अटेम्प्ट की थी तो उसमें मैंने आउटलाइंस नहीं बनाए थे, एक भी नहीं था, डायरेक्ट मैंने स्टार्ट किया था। और जो ऐसी थी वो मैंने लिटरेचर से रिलेटेड अटेम्प्ट की थी, दैट वाज ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। क्योंकि ओके मेरा बैकग्राउंड लिटरेचर से था तो मैंने वो अटेम्प्ट किया था। तो मतलब आउटलाइंस पे ज्यादा फोकस देते हैं, अभी जो मैंने आपकी क्लास ली और इससे पहले मैंने कुछ क्लासेस ली, आउटलाइंस पे फोकस देते हैं, मैंने वो भी नहीं किया था। और बाकी जो जितना मतलब आप लोग कर वो कहते थे इंट्रोडक्शन का और कंक्लूजन का, तो वो तो मैंने बस रैंडमली बस अटेम्प्ट किया था। तो बस बुनियादी क्वेश्चन वो था जो अभी आपने रिप्लाई दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। if there any other question, जी। any other question बेटे? नो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके। तो ये बेटे मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ, ये गैलेक्सी J7 प्राइम वाले भाई, नाम मुझे भूल गया। तो यस सर। जी बेटे, तो ये बात भी जहन में रखें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल CSS इज द गेम ऑफ योर लक। यस सर। कई ऐसे हमारे क्लास फेलोज हैं जो कि सिंपली MBA किया हुआ है, आपके मतलब रिमोट सेंस से विलेज एरिया से, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। जस्ट आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेपरेशन वो दे गेट एलोकेटेड। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी तरफ से कवरेज में कमी ना हो, बाकी अल्लाह ताला की तरफ से किसी का इतनी फेट अच्छी होती है कि वो मॉडरेट लेवल पे भी क्वालिफाई कर जाते हैं, कई बहुत हाई फाई लेवल के बंदे होते हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हमें हमारा सही पार्ट सर। क्या है कि वी शुड नॉट लीव एनी ग्रे एरिया, दैट्स ऑल। ओके सर। और सर ये तो मतलब फिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब मैं स्टडी करता हूँ, मैंने बीएस में कंप्लीट मैंने स्टडी किया, लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स अक्सर स्टडी करते हैं, तो मेरा शुक्र है मेरा स्टेमिना है 7-8 आवर्स लाइक डेली, ये मैं कर सकता हूँ। अभी तो बस कोरोना भी है, जॉब है लेकिन कोरोना की वजह से छुट्टियां हैं तो बस घर पे होता हूँ। तो मतलब ये तो कोई इशू नहीं है कि बंदा ज्यादा पढ़ता है कम पढ़ता है, 5-6 आवर्स कोई वो टाइम आप फिक्स कर सकेंगे सर? जी बेटे, कि आपने मतलब वो 7 आवर्स 5 आवर्स? ये आपने देखें वो शेक्सपियर की कोटेशन सुनी होगी, ज्यूल्स ऑलवेज मेक द ऑर्नामेंटल ब्राइड। ठीक है, कि जो दुल्हन है वो जितने भी हीरे जवाहरात में हो वो उसको अच्छे ही लगेंगे, उसमें बुरा नहीं सही लगेगा। सर। तो जितना ज़्यादा आप पानी डालेंगे उतना ही अल्लाह ताला ज़्यादा आपको फल लगाएंगे। CSS या सही PMS सर। ना भी करें, इसके अलावा आपकी यस सर। प्रोफाइल में आपका नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी लर्निंग, आपकी रिसर्च, आपकी एक्सप्लोरेशन, वो आपको एक प्रॉपर मैन बना देंगे। तो लर्निंग इज द फ्रूट ऑफ लाइफ। सही। सर थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत टाइम लिया, बाकी भी शायद अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते तो बस आप उनको टाइम दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन?
from any of the students? जी बेटे, is there any question from any of the students? सर अब आप सेशन एंड कर लें, मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जावेद अली। और काफ़ी क्लास जो है हमारी अभी लेंथी भी होगी। Okay बेटे, okay, thank you, Allah Hafiz.